Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about factors and multiples. So let's start with that. So in a class 4th we studied the concept of factors and multiples beta. So let's review these definitions again. So factors and multiples क्या होते हैं? Let's start with that one. When a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend beta, and the dividend is called a multiple of the divisor. Let's see the example for more clarity. We know that 5 divides 15 exactly. 5 15 को exactly divide करता है, कोई remainder उसमें नहीं बचता है. So we can say that 5 is a factor of 15. 5 हमारा 15 का factor है और 15 क्या हो गया? 15 is a multiple of 5. Now example 2. All factors of 4. 4 के factors क्या हैं? 1, 2, 2 की टेबल में 4 आता है एंड 4 itself, 4 की अपनी ही टेबल में 4 आता है. ऑल फैक्टर्स ऑफ 6. 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 6 किसकी टेबल में आता है? 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल्स में, 3 की टेबल्स में भी 6 आता है और अपनी टेबल में तो आना ही आना है, मतलब 6 की टेबल में आएगा. एंड 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3 की टेबल्स में 12 आता है, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में एंड 12 itself बेटा. So this is how we just find out the factors. Now example 3. First 5 multiples of 4. 4 के multiples मतलब कि 4 की टेबल्स हमने लिखना है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 12, देन 16 एंड 20. सो ये हमारे 4 के मल्टीपल्स हो गए. सिमिलरली 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 10 15 20 25 एंड 6 के मल्टीपल्स 6 12 18 24 30 बेटा. सो ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 6 and multiples of 5 and 4. I hope you understood the multiples and factors well. Now properties beta. Properties of factors. 1 is a factor of every number. Okay? जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है. Every non-zero number is a factor of itself. A factor of a non-zero number is less than or equal to the number. 1 is the only number having one factors, namely itself. Every non-zero number other than 1 has at least 2 factors, namely 1 and itself. Every non-zero number is a factor of 0 beta. I hope you understood all these property. Now see the properties of multiples. Multiple की property क्या होती है बेटा? Every number is a multiple of 1 first. हर नंबर अपना एक मल्टीपल होता है, उसका अपना नंबर इटसेल्फ. मतलब जैसे कि 2 1 इंटू 2, 3 मतलब 1 इंटू 3 एंड 4 दैट मीन्स 1 इंटू 4 एसेट्रा. बी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 एंड सो ऑन. सी पार्ट में है एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज अ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर. हाउ? Multiple of 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Clearly each one of the क्या है हमारा? Yes, जो नंबर हमारा आएगा वो ग्रेटर देन होगा 2 से बेटा. Of course 2 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा 6, देन 8, वो 2 से ऑब्वियसली बड़ा ही नंबर होगा. Now next property है we can find as many as multiples of a non-zero numbers as we want. 2 के हो चाहे 3 के हो, किसी के भी हम मल्टीपल्स कितने भी हम ले सकते हैं बेटा. सो विच इज़ इनफाइनाइटली मैनी, लाइक दिस वन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. नाउ even or odd number. Even number first. Counting numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. So thus every even number has 0, 2, 4, 6, 8 at its unit digits. Unit digits में अगर ये numbers आपके आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, that means वो number आपका क्या होता है? even number बेटा. Example 162 इसके unit place पर 2 है, 374 इसके unit place पर 4 है, 906 में unit place पे 6 है. So these all are even numbers. Now odd numbers.
ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, वो हमारा होता है ऑड नंबर। सो दस एवरी ऑड नंबर, जो ऑड नंबर होते हैं उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर होने चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स होने चाहिए। जस्ट डू रिवाइज इट। एग्जाम्पल 231, 1 यूनिट प्लेस में है तो ये हमारा क्या है? ऑड नंबर। 3 यूनिट प्लेस पर है, दिस इज ऑड नंबर। 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर एंड सो ऑन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। Number 1, test of divisibility by 2. That means a number is divisible by 2 if its unit digits has only one of 2, 0, 2, 4, 6, 8. अगर उसके यूनिट की प्लेस पर ये नंबर्स होते हैं तो दैट मीन्स वो हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2 है। एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर 612, 354, 576, 938, 730, इन ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डिविजिबल बाय 2। वाई? बिकॉज एट देयर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर हमें गिवन है। होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसका टेस्ट कैसे करते हैं? लेट्स सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर हमें गिवन है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। कंसिडर द नंबर 16701। ये कुछ नंबर हमें गिवन है 16,701। क्या ये होल नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, ऐड देयर सम्स डिजिट्स। उन डिजिट्स को हम ऐड ऑन कर देंगे तो ये कितना आया? 15 आया। 16701 को ऐड ऑन करने पे हमें मिला 15। सो 15 क्या 3 की टेबल से हमारा डिवाइड होता है? येस, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स दिस होल नंबर, दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। अगर उसका सम हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा बेटा। होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 में हम क्या करेंगे? A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits। ये याद रखना, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को हमने देखना है। अगर ये 2 नंबर हमारे कहाँ पर? ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। अगर वो 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं सो दैट मीन्स कंप्लीट नंबर हमारा 4 की डिविजिबिलिटी रूल माना जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल 58,236। तो हमने राइट साइड के 2 नंबर देखने हैं जो कि हमें कितना गिवन है? 36। तो 36 क्या 4 की टेबल में आता है? यस। सो दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4 है। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट का हमारे जो 2 नंबर है वो कौन सा नंबर गिवन है? 06। सो 06 दैट मीन्स 6 क्या 6 4 की टेबल से डिवाइड हो सकता है? नो, 6 4 की टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5। सो इसमें हमने क्या देखना है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट्स इज 0 और 5। अगर वो 0 और 5 होते हैं तो ही वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। लेट्स सी एग्जाम्पल 5790। यस, इसमें 0 है यूनिट प्लेस में। 7300 इसमें 0 गिवन है। 2345 इसमें 5 यूनिट प्लेस पे गिवन है। 1085 में 5 हमारा यूनिट प्लेस पे गिवन है। सो ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5 बेटा। होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 1643 नो, इसमें 0 नहीं गिवन है, 5 भी नहीं है। 3952 भी नहीं है, 4721 भी नहीं है, 5087 has no 0 and 5 at their unit place. So these all number are not divisible by 5. Hope you understood this rule. Now test of divisibility by 6.
A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. So अगर कोई नंबर हमारा 2 और 3 से डिवाइड होता है ओनली देन वो हमारा डिविजिबिलिटी बाई कहलाएगा 6 से. एग्जाम्पल हमें गिवन है 75864, दैट मीन्स 75,864. अब इसके यूनिट की प्लेस में हमारा 4 गिवन है, दैट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होगा. और 3 का क्या रूल था, इन सब के डिजिट्स को ऐड करने पे हमें कितना मिला 30. सो 30 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है. सो दैट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हमारा ये डिवाइड हो रहा है. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 बेटा. सो दिस इज द रूल ऑफ टू टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डबल करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस. जो वंस प्लेस में जो डिजिट्स दे रखी है उसको हमने डबल करना है. आफ्टर दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन इन अ स्टेप 1 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. एंड देन if the number so obtained is divisible by 7, then the given number is divisible by 7. See the example for more clarity. मान के चलते हैं हमें नंबर गिवन है 6895. अब हम क्या करेंगे, 689 माइनस 2 इंटू 5 दैट मीन्स कितने होते हैं 10. तो 689 माइनस 10 679 हो गया. So which is divisible by 7 beta? I hope you understood well. So now next divisibility. This is 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits. अब आपने ध्यान रखना है इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स को देखने हैं कहाँ से, एक्सट्रीम राइट में से. सी हमें एग्जाम्पल कितना गिवन है 5978164. इसमें हमने सिर्फ लास्ट के 3 नंबर देखने हैं 164. तो क्या ये 164 8 का डिविजिबल है? यस, ये 8 से हमारा डिविजिबल हो जाता है. दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9. अगर उन सबको सम करके वो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. 563210 इन सबको हम ऐड ऑन कर देंगे, कितना आ गया हमारा 21. तो क्या 9 की टेबल में 21 आता है? नो, 9 की टेबल में 21 नहीं आता है. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 बेटा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं 867105. इन सबको ऐड ऑन करने पे कितना आ गया हमारा 27 आ गया. तो क्या 9 की टेबल्स में 27 आता है? यस. सो वी कैन से दैट दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9. So now next, this is divisibility by 10. A number is divisible by 10 only when its unit digits is 0. अगर उसकी यूनिट की प्लेस पर 0 होगा तो ही वो नंबर हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10 कहलाएगा. सी द एग्जाम्पल 6340, इसमें आपका 0 गिवन है. यस, इसमें 0 गिवन है. 5910, इसमें भी आपका 0 गिवन है. 107300, इसमें भी 0 गिवन है हमारा यूनिट की प्लेस में. सो ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 10. होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सो नाउ नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. सो 11 का रूल होता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and the sum of digits at even places is either 11. या तो वो 11 आना चाहिए या फिर उसका मल्टीपल आना चाहिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल 623411. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड जो नंबर है हमारे सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस
ऑड प्लेसेस के नंबर का सम। सो 1 4 2 का सम कितना हो गया 7, और हम क्या करेंगे सम करेंगे इवन प्लेसेस के नंबर को, जो हमारा हो गया 10। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का 3, 10 में से माइनस करें 7 तो 3 होता है। सो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 बेटा। सो if this is not divisible by 11, so complete number is not divisible by 11. Hope you understood these things. Now B part. Example हमें given है 7 5 4 3 8, odd places का sum हो गया 19, even places का sum है 8, दोनों को माइनस करेंगे कितना आता है 11, जो कि हमारा yes which is divisible by 11. तो that means this complete number is divisible by 11. I hope you understood all divisibility rule of this one. So now next beta. Texting time 5.1. Write all the factors of each of the following numbers. So इनके हमने क्या करने हैं factors निकालने हैं. So सबसे पहले 18. Factors मतलब वो किसकी टेबल में आता है 18 1 की टेबल में, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो हमने लिखना ही लिखना है। 18 हमारा आता है 2 की टेबल्स में, 2 9s होते हैं, 3 की टेबल्स में, 6 की टेबल में हमारा 18 आता है, 9 2s 18 होता है, और 18 itself. So these all are the factor of that one beta. Hope you understood these things. Second, third, fourth questions beta, do it yourselves. These are very easy question answers. So now move on next topic. This is prime and composites numbers. So prime number first. A number having exactly two different factors, namely 1 and itself, is called a prime numbers. See, example हमें given है, each of the following numbers is a prime numbers. That means 2. 2 के जो हमारे factors कितने होते हैं हमारे, या तो 1 है या तो itself है। 3 भी या तो 1 की टेबल में आता है या अपनी टेबल में आता है। 5 या तो अपनी टेबल में आएगा या फिर 1 की टेबल्स में। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ऑल दीज नंबर ये हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर्स बेटा, क्योंकि इसके हमारे फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्व्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. सी 4 है यहाँ पर. 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 1 की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में भी आता है 4, एंड 4 इटसेल्फ 4 की टेबल में भी 4 आता है. सो ये हमारे क्या हो गए? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए. सो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स. सो सिमिलरली 6 भी कंपोजिट नंबर है. 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ये सारे के सारे नंबर हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स बेटा. Hope you understood the difference between the even and the composites numbers, prime and the composites numbers beta. So now note 1. Clearly 1 has only one factor, namely 1 itself. Therefore 1 is neither a prime number nor a composite beta. 1 हमारा ना prime में आता है ना composite आता है. Note 2, the smallest prime number हमारा क्या होता है? 2. and it's a even prime number. Next topic है to find all prime numbers between 1 to 100. 1 से 100 के बीच में prime numbers को कैसे find out करते हैं? Let's see. About 230 BC, a Greek mathematician Eratosthenes developed the method of finding prime numbers up to 100. This method gives us a grid known as sieve of Eratosthenes given below. So let's see. Method क्या given है हमें? Write down the numbers from 1 to 100 in a 10 rows and proceed as under. Step number 1, सबसे पहले क्या करेंगे? Cross out 1. 1 को cross out कर देंगे like this way. Step number 2 पे encircle 2. 2 को encircle करेंगे and cross out रिमेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2. दैट मीन्स 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? हमने अभी सीखा
2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इसके क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो उन सबको हमने क्या करना है क्रॉस आउट करना है। जैसे कि 2 को एनसर्कल कर लिया, बाकी इसको क्या करा क्रॉस आउट करा जो उसके मल्टीपल्स हैं। स्टेप नंबर 3 पे 3 को हम एनसर्कल करेंगे, उसके जो सारे के सारे मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस आउट करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे 5 को एनसर्कल करेंगे, उसके जो मल्टीपल्स हैं क्रॉस आउट। 7 को एनसर्कल्स, उसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट। एंड आफ्टर दैट एनसर्कल्स ईच वन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स स्टेप नंबर 6 में। So all the encircles numbers are the prime numbers and all the cross out numbers are composite numbers. So thus there are 25 prime numbers between 1 to 100 beta. So thus all prime numbers between 1 to 100 कौन कौन से हो गए हमारे? Yes, clearly बेटा जो हमारे ये हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे के सारे numbers हमारे क्या हो गए prime numbers. Hope you understood these things. Now ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स मीन्स बेटा प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। सी 3 and 5, सो 3 और जो 5 है ये हमारे क्या है, इनके बीच में कितने का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट है, सो ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। सिमिलरली 5 और 7 इनके बीच में भी 2 का गैप है। 11 and 13 इनके बीच में भी 2 का गैप है। 17 and 19, सो ये नंबर हमारे कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स। सी 21 and 25 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है हमारे ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स है। 8 and 15 को प्राइम नंबर है। 3 and 4 भी को प्राइम नंबर्स हैं, एंड 4 and 9 ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। सो नाउ सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशंस बाय ड्रॉइंग द फैक्टर ट्री। सो 630 है, 6 के फैक्टर्स 630 2 3 15 जा 630 एंड 315 के फैक्टर 105 3 जा 315, 35 जा 35 3 जा 105, 7 5 जा 35 एंड 1 7 जा 77। सो 2 3 3 5 7, सो ये जो हमारे नंबर होते हैं ये हमारे निकले इसके यस बेटा प्राइम फैक्टर। आप होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। 180 में भी हम कैसे करेंगे, 180 का फैक्टर टी बनाया, 90 2 जा 180, then 45 2s are 90, 15 3s are 45, 5 3s are 15, 1 5s are 5, so that means 2 2 3 3 5 ये हमारे क्या निकल गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस बेटा, प्राइम फैक्टर you can say that. Hope you understood these things. So now next example. Separate the prime and the composite numbers from the following: 18, 23, 39, 43 and 81. इसमें हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर है और कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स है, इनको सेपरेट करना है। सो वी नो दैट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वी नो दैट अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज अ प्राइम नंबर्स एंड द वन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे क्या हो गए, 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 की, 2 की, 3 6 9 और 18, सो 18 के फैक्टर हो गए। सो 18 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 18 क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर है हमारा। 23 1 एंड 23, सो 23 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो ये हमारा क्या है, क्या निकला हमारा 23 प्राइम फैक्टर्स बेटा। वी जस्ट राइट इट 23 हमारा है प्राइम। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 23 और यहाँ पर आप लिखोगे प्राइम नंबर्स, प्राइम बेटा। सो 39, सो 39 हमारा क्या है, 39 के फैक्टर्स 1 3 13 39, सो 39 के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 39 हमारा क्या निकला, 39 निकला हमारा बेटा कंपोजिट नंबर्स। सो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 43 के भी ज़्यादा फैक्टर्स है, तो 43 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। सो हैंस आउट ऑफ द गिवन नंबर्स 23 एंड 43, 23 और 43 हमारा प्राइम नंबर्स हैं, और उसको छोड़ के जो 18 है, 39 है, 81 है, ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर्स।
I hope you understood these things. So now next example. Write the prime factorizations using division method. Prime factorizations हमने करना है division method के through. So 90 2 की टेबल्स में 90 हमारा कितने टाइम्स में आता है 2 45 ज़ा 90. सो 45 लिख लिया. 45 किसकी टेबल में आता है 3 15 ज़ा 45. 15 किसकी टेबल में 3 5 ज़ा 15 एंड 5 किसकी टेबल में आता है 5 अपनी टेबल में आता है 5 1 ज़ा 5. सो जब 1 आ जाता है तो हमारा स्टॉप हो जाता है. तो 19 के फैक्टर्स क्या निकल गए 2 3 3 एंड 5. सो ये हमारे 90s के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे यही मेथड अप्लाई करेंगे. 468 पहले 2 से देन 2 से फिर 3 3 एंड 13. सो ऑल दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ टेक्सटिंग टाइम 5.2. क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अ प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स हमने अभी पढ़ा जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ. सो कौन कौन से हमारे हैं लेट्स सी. 19 सिर्फ 19 के फैक्टर्स 1 की टेबल में और 19 अपनी टेबल्स में आते हैं. 83 भी हमारा प्राइम नंबर्स है और 89 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर बेटा. तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए. I hope you understood these things. Now these are the beta other questions. You have to complete it yourselves. It's very easy. So now move on. Next one. This is highest common factor means HCF or a greatest common factor मतलब GCD. G for greater, C for common, D for divisor. So HCF of 2 or more number is the greatest number that divides each of the numbers without leaving any remainder. It's in fact the greatest of the common factors of the given numbers. So HCF by a factorizations method first. Suppose we have to find the HCF of a 2 or a more given numbers. Then we proceed as under step number 1. Find all the factors of each of the given number. Step number 2 find their common factor. उसके बाद क्या करते हैं the largest of the common factors is the HCF of the given number. See the examples बेटा for more clarity. हम HCF निकालेंगे किसका 18 24 एंड 30 का. सो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स हो गए 1 18 ज़ा 18. 18 किसकी टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18 लाइक दिस वन. सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो गए 1 2 3 6 9 18 बेटा. 24 के लेते हैं हम. सो 24 1 24 ज़ा 24 होते हैं 2 12 ज़ा 24 3 8 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24. सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे निकल गए like these are. That means 1 2 3 4 6 8 12 24. Next 30. So 30 के फैक्टर्स हमारे निकले 1 2 3 5 6 10 15 30. अब हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर देखेंगे इन सब के. सो 1 इन सब का कॉमन फैक्टर है. 2 की टेबल में 18 भी आता है. 2 की टेबल से 24 भी डिवाइड हो जाता है. 2 की टेबल से 30 भी आता है. सिमिलरली 3 एंड 6. सो वी कैन से दैट HCF ऑफ 18 24 30 कितना आ गया हमारा 6 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस HCF. नाउ नेक्स्ट वन फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32. सो 24 1 24 ज़ा 24 2 12 ज़ा 24 3 18 8 ज़ा 24 एंड 4 6 ज़ा 24. सो 24 के फैक्टर्स हमारे निकल गए कौन कौन से 1 2 3 4 6 8 12 24. 32 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं 1 32 ज़ा 32 2 16 ज़ा 32 होते हैं 4 8 ज़ा भी 32 होते हैं. सो 32 के फैक्टर्स हमारे निकल गए ये सारे जो कि है 1 2 4 8 16 32. सो
कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 कौन कौन से हैं? 1, 2, 4 एंड 8. सो HCF क्या हो गया हमारा इन सब का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा इन सब का 8 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस HCF मेथड. नाउ HCF हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. लेट्स सी. Find the HCF of 72, 90 by prime factorization method. 72 लिखेंगे. 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 and 2 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. सो हमारे इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकले? 2 2 2 3 3. सो वी जस्ट राइट इट. ये हमारे इसके फैक्टर्स निकले. अब 19 के निकालेंगे. 2 45 जा 90, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. तो ये 1 आ गया. अब हम स्टॉप करते हैं. तो इसके फैक्टर्स कौन से निकले? 2 3 3 5. तो हमने यहाँ लिख दिया 2 3 3 5. ये हमारे 90 के फैक्टर्स हुए. सो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर 72 एंड 90 दैट मीन्स 2 3 3 18. सो 18 इज द HCF ऑफ ऑल 2 नंबर्स बेटा. Hope you understood this prime factorization method of HCF. So now next, HCF by a common divisor method. So let's see. Step number 1, arrange the given number in a line in a order. After that, divide the number by the lowest common prime number. Write the quotients below the number. Step number 3, then divide the quotients by the lowest common prime numbers. Repeat the process till there are no common prime numbers to divide by. The product of the divisor is the required HCF. So, see the example for more clarity step by step. सबसे पहले हमने 60 एंड 72 का HCF निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से एक लाइन पे लिख देंगे दोनों को. दोनों किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 2 की टेबल से. सो 2 30 जा 60, 2 36 जा 72, 2 15 जा 30, 2 18 जा 36, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18. सो 2 2 3 हमारा ये क्या है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12. सो 12 इज द HCF ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ 5 एग्जाम्पल. 56 84 का हमने HCF निकालना है और 154 का. तो एक लाइन पे हमने इस तरीके से लिख लेंगे. उसके बाद 2 की टेबल से डिवाइड करा हमने. 2 28 जा 56, 2 42 जा 84 एंड 2 77 जा 154. नाउ 7 की टेबल से ये डिवाइड होंगे और ये नंबर आ जाएगा 4 6 11. सो दैट मीन्स ये हमारा कितना बना? 2 7 4 6 11. सो HCF इसका कितना आ गया? 14. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. HCF बाय डिवीजन मेथड बेटा. इसमें हम क्या करेंगे? सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ अ 2 लार्ज नंबर्स. सो देन वी प्रोसीड एज अंडर. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ऑब्टेन द रिमाइंडर. देन हम क्या करेंगे? डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर एंड आफ्टर दैट repeat the process of dividing the previous divisor by the remainder last obtained till 0 is obtained as remainder. Then the last divisor is the required HCF. Let's see the example for more clarity. Find the HCF of 217, 385 and 735. So first we find the HCF of any 2 number. So हम यहाँ पर 2 नंबर स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लेते हैं. दैट मीन्स 217 एंड 385 को डिवाइड करेंगे. सो 217 वन ज़ा 217 माइनस करके कितना आ गया? 168. 168 जो हमारा आया, अब ये हमारा डिवाइड होगा. ये जो 217 है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे. सो 168 वन ज़ा 168 माइनस करके 49 आया. नाउ इस 168 को इससे डिवाइड करेंगे. 49 3 ज़ा 147 माइनस करने पे 21 आया. अब हम क्या करेंगे? 21 जो हमारा है
49 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सो 21 2 ज़ा 42, 9 में से 2 गया 7, 7 आया, 7 3 ज़ा 21। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा 7 बचा है, इस 7 को हम डिवाइड करेंगे लास्ट नंबर से जो हमारा 735 है। सो 7 1 ज़ा 7, सो दो नंबर हमारे एक साथ नहीं उतर सकते, 0 लिया, 7 5 ज़ा 35। So we can say that 7 divides 735 completely. So HCF of 7 and 735 is 7. Hence the HCF of 217, 385 and 735 is कितना आया? 7 आया बेटा. Hope you understood these things. So next बेटा. Find the HCF of 594, 792 and 1848 by the division method. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, 594 को डिवाइड करेंगे 792 से। 594 1 ज़ा 594, माइनस करने पे हमारा कितना आया 198। सो नाउ 198 को हमने डिवाइड करना है 594 से, सो ये हमारा आया 3। सो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 594 एंड 792 कितना है 198। अब हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड द HCF ऑफ 198 एंड 1848। सो 198 को 9 ज़ा से करेंगे, सो 1782 माइनस करा तो बेटा कितना आया 66 आया। सो 66 को 198 से सॉल्व करेंगे, सो दैट मीन्स 3। सो HCF of 594, 792 and 1848, ये इतना हमारा आया 66। So this is the answer बेटा. I hope you understood well. So now texting time 5.3. Find the HCF of 14, 28 and 35. इन तीनों का हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। So let's start with first one. 14 का 2, 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ये 1 आ गया। अब हम निकालेंगे 28 का, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड इसमें आ गया हमारा कितना 7, 7 1 ज़ा 7। अब 35 का, सो 35 का हम निकालेंगे 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। अब कॉमन हमारे इसमें से कौन कौन से होते हैं, 14 के फैक्टर्स हमारे कितने निकल गए 2 और 7। 28 के फैक्टर्स कौन कौन से निकले 2 2 7, तो वी जस्ट राइट इट 2 इंटू 2 इंटू 7। 35 के फैक्टर्स कौन से बेटा, 35 के फैक्टर्स हमारे निकले 5 इंटू 7। कॉमन इसमें क्या है हमारा, दिस इज 7 7 7 7, तीनों में 7 हमारा कॉमन आ रहा है, तो वी कैन से दैट HCF कितना आया हमारा 7, और यही हमारा है आंसर बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो दीज आर द बेटा अदर क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM. So the LCM of a 2 or a more given number is the smallest multiple of each of the given numbers. For example, let's consider the number 4 and 6. 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 की टेबल्स होती हैं। 6 के मल्टीपल्स, 6 की टेबल्स आ जाएगी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18 24 30 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स होते हैं सो ऑन। सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 इज 12. So hence the LCM of 4 and 6 क्या हो गया 12 बेटा। Hope you understood these things. So now next, to find LCM by a prime factorizations method, सबसे पहले resolve each of the given numbers into product of the prime factors. Then the LCM of the given number is the product of all different prime factors taking the common prime factors occurring maximum number of times. See the example. Example number 1. Find the LCM of 48 72 by prime factorizations. सबसे पहले हमने 48 का निकाला, 48 means
क्या निकले इसके फैक्टर 2 2 2 3 3 लाइक दिस वन 72 के लेंगे हम. So here 2 appears maximum 4 times in one of the prime factorizations. 3 appears कितनी बार maximum 2 times in one of the prime factorizations. So that means now we take 2 4 times and 3 2 times and multiply to get the LCMs. So 48 एंड 72 का LCM कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 2 इंटू 3 3 that means 144 is the LCM of that numbers. Hope you understood these things. So now move on next beta. LCM by short division method means shortcut method से हम किस तरीके से LCM ले सकते हैं. Step number 1, arrange the given numbers in a line in any order. After that, divide by a number which divides exactly at least 2 of the given numbers and carry forward the other which are not divisors. Step number 3, repeat the above process till numbers 2 of the numbers are divisible by the same numbers other than 1. After that, the product of the divisor and the undivided numbers is the required LCM of the given numbers. सीधा बेटा एग्जाम्पल्स अब फिर आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से हम स्टेप यूज़ करेंगे इसके. सबसे पहले हम निकालेंगे LCM 20 का 30 का 50 का. शॉर्ट डिविजन्स का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक ही लाइन पे लिखेंगे 20 30 और 50. हमने इस तरीके से अरेंज करा. किसके टेबल्स में हमारे 20 30 50 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं. 2 की टेबल्स में 2 10 20 होते हैं, 2 15 30 होते हैं और 2 25 50 होते हैं. सो ये हमने सॉल्व कर लिया. अब ये तीनों नंबर्स किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल्स में आते हैं. 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 5 25. नाउ 2 3 5 अब ये किसी की नंबर में सेम साथ साथ नहीं आते. जस्ट कीप इट हेयर एज इट इज़. सो इसके LCMs हमारे क्या क्या बन गए 2 5 2 3 5. सो 2 5 2 3 5. सो ये हमारे LCM मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 300 बेटा. नाउ एग्जाम्पल 3, इसमें 96 108 180 इस तरीके से आपने एक साथ लिखा है इसको. किसकी टेबल्स में तीनों नंबर आते हैं 2 की टेबल्स में. फिर उसके बाद अगेन 2 की टेबल्स में, देन 3 की टेबल्स में ये डिवाइड हो रहे हैं, देन 3 की टेबल्स में और लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 8 3 5. अब ये किसी की टेबल्स में नहीं आते हैं. सो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे ये नंबर्स बने. इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो LCM आएगा इस नंबर का कितना होगा 4320 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस LCM मेथड. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. टेक्स्टिंग टाइम 5.4. Find the LCM of the given numbers using shortcut division. So shortcut division से कैसे करते हैं let's see. नंबर क्या गिवन है हमें 32 और 48. अब हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल्स में हमारे डिवाइड हो रहे हैं. सो क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसकी यूनिट की प्लेस पर 8 है, दैट मीन्स ये 2 की टेबल से डिवाइड होंगे. सो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 4 8. अगेन 6 और 4 यूनिट प्लेस पर ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे. 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6. अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते थे, एक ही बात है. बट चलो 2 2 2 2 ये हमारे इसके फैक्टर्स निकले. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो 1 2 3 4 5 इंटू 3. सो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96 बेटा. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 and 32 3 3 2 6, 3 3 9, 96. So 96 is the answer of that one beta. I hope you understood well. So now these are the beta other questions. Do it yourselves. Next topic is some facts about HCF and LCM. So
The LCM of two co-prime numbers is equal to their product. Two numbers are said to be co-prime if their SCF is 1. If one number is a factor of the other number, then their SCF is the smaller numbers and their LCM is the larger number. Product of two given number is equal to the product of their SCF and LCM. Thus we can say that LCM of the two given numbers कितना होता है, first number multiply by second number divided by SCF of the given numbers. Hope you understood these things. Now example number 1. Find the HCF and LCM of 680 and 816. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे. सो HCF हमारा कितना है 136, ये हमारा 136 आ गया. LCM फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर और उसका HCF. सो 680 इंटू 816 बाय 136. सो LCM कितना आ गया इसका 4080 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट. Find the greatest number which divides 148 and 100, leaving remainder 4 in each case. So, solutions. Clearly, we have to find the larger number that divides 148 minus 4, that means 140, and 100 minus 4, that means 96. Exactly. So, that means required number हमारा कितना आ गया, HCF of 144 and 96, that means 48 beta, like this is. Hope you understood. Now example 3. 3 pieces of timber 42 meter, 49, 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? Required length HCF of 42, 49, 63, that means 42 के factors 2, 3, 7, 49 के factors हो गए 7, 7, 63 के factors हो गए 3, 3 into 7. So इनका हमारा जो HCF आया, इसका जो है कितना आया 7. So we can say that has the required length of the each plank 7 meter beta. Hope you understood this one. Now example next. The HCF of a two number is 144. दो नंबर का जो HCF है 144 है and their LCM is 2880. वो हमें गिवन है. अब हमने क्या करना है, if one of the number is 720, अगर एक नंबर 720 गिवन है तो अब हमने दूसरा नंबर फाइंड द अदर नंबर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे HCF इंटू LCM बाय गिवन नंबर्स, दैट मीन्स 144 इंटू 2880 बाय 720. सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स अदर नंबर हमारा क्या आना चाहिए 576 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ टेक्सटिंग टाइम 5.5. द HCF ऑफ अ टू नंबर इज 12. दो नंबर का HCF 12 गिवन है एंड देयर LCM इज 180 और LCM भी गिवन है. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 36 और एक नंबर अगर हमारा 36 है तो हमें क्या करना है, हमें उसका दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे हम इसको, लेट्स सी. HCF हमें गिवन है 12, LCM भी गिवन है हमें 180, वन नंबर भी हमें गिवन है कितना 36. ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. अदर नंबर हमने फाइंड आउट करना है. HCF इंटू LCM बाय गिवन नंबर. HCF कितना है 12, LCM कितना है 180, गिवन नंबर कितना है हमारा 36, जो पहला जो हमारा फर्स्ट नंबर है. सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 12 1 12, 12 3 36, 3 1 3, 3 6 18, 0 पर आ गया. सो वी कैन से दैट जो हमारा अदर नंबर है वो है हमारा 60. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.
So these are the beta other questions, you have to solve it yourselves. Now things to remember. A number which has more than 2 factors वो क्या कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता. A number which has only 2 distinct factors, 1 and number itself, वो हमारे होते हैं prime number. If a number is expressed in the form of product or a prime numbers, then this form is called prime factorizations of the given number. HCF of 3 numbers क्या होते हैं? HCF of any 2 and numbers and their third numbers. If a number is a factor of another numbers, the smaller number is the HCF of the given number. 7.1 The lowest common multiples of 2 or more number is the smallest among their common multiples. If one of the 2 given numbers is a multiple of the other, the greater number is the HCM of the given number beta. To determine the LCM of the given number, we first find their prime factorizations, then we take the product of each prime factors with the maximum number of time it has appeared. So to calculate the LCMs. I hope you understood all points very nicely, beta. So with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by your own.